السلام علیکم ناظرین، نوید وڑائچ آپ کی خدمت میں آج ایک اور خصوصی آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے. آج کا ہمارا مقصد آپ کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی ہے اور عید کی جو آپ آج فیسٹیوٹیز اور منا چکے ہوں گے. آج ہم تھوڑے سے آپ کو مہمانوں کے ساتھ اپنے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ملوائیں گے اور ہمارے یہاں کی جو عید کی تیاری کرنے والیاں ہوتی ہیں آج ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ وہ کتنا ہارڈ ورک، ہماری لیڈیز کتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں اور عید کا کیا اہتمام کر رہی ہیں وہ، اور وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کیا کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. لیکن اس سے پہلے آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں وہ ہیں عدیل سہروردی. none other than یہ ایکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں انہوں نے کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں، اور ان کا اپنا ایک پروڈکشن ہے، ٹیم ہے. انہوں نے اپنا ڈرامہ جو ہے لانگ سیریز جو شروع کی ہے مینگوز کے نام سے، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا وہ ایکسپیرینس کیسے رہا ہے. اور السلام علیکم عدیل، کیسے ہیں؟ عید مبارک سب کو. خیر مبارک. اور آپ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے عدیل. میں نے آپ کو بہت پہلے جب میں پاکستان سے یہاں پہ آیا تھا تو میرا خیال ہے پہلا انٹرویو آپ نے میرا کیا، میں آپ سے اتنا امپریس ہوا کہ ایک ایسا نوجوان جو کیمرے کے پیچھے لوگوں کو کمیونٹی میں انٹروڈیوس کرا رہا ہے. آج جہاں کل کہاں اس طرح کا عنوان تھا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس میں آپ نے بہت ساری کمیونٹی کے ممبرس کو فیچر بھی کیا. تو اس سے شروع ہو کر آج تک کا سفر کیسا رہا؟ کل کہاں آپ یہاں تو بہت شروع میں کیا تھا، اور کل کہاں پہ جیسے اس کا ٹاپک ہی یہی کہتا ہے کہ کل کہاں تھے آپ کہاں ہیں، لیکن اس کے بعد لائف وہاں ختم ہی ہو جاتی، اس کے بعد بھی بہت جہاں ہوتے ہیں. تو اس کو تقریباً 5-6 سال کیا. بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا تو عدیل، آپ نے عالمگیر جو پاکستان کے ایک فیمس سنگر ہیں ان کو ریوائیو کرایا، دوبارہ ان کو لے کے آئے، اور آپ کا وہ اس کا گانا جو ایک چائنیز سنگر کے ساتھ وہ بھی کافی پاپولر ہے، اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے ہماری کمیونٹی. آپ نے تھوڑی اصلاح کر دوں کہ ریوائیو تو میں نے کیا وہ تو اللہ نے کیا جی. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے 16-17 سال سے میوزک چھوڑی ہوئی تھی، اور جو اسپیشلی میری جنریشن جو ان پہ بڑی ہوئی ہے کہ میوزک سن کر کے، اور آج یہاں میں کسی کی عمر کا پہ وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سی جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں ان کی شادیاں بھی ان کے گانوں پہ ہوئی ہیں. تھوڑا سا بتائیں کون سا گانا شاید ہم بھی گنگنا رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب لوگ ناچتے تھے تو انہیں کا گانا چل رہا ہوتا تھا، تو ہم تو چھپ جاتے تھے، ورنہ امی کہتی تھی کہ آؤ تم بھی ناچو. اچھا، ہمارا دوسرا کام ہوتا تھا چھپ کریں. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ سے وہ آئے 17-18 سال کے بعد، تو لوگوں نے ان کو اسی طریقے سے پیار دیا اور ویسے ہی ایکسیپٹ کیا جیسے جب وہ چھوڑ کے گئے تھے. تو اس میں اگر ہمارا تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہمارے لیے. لیکن وہ انسان بھی اتنے اچھے ہیں، آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے اور یہاں آئے بھی ہوئے، تو کیونکہ وہ ایک تو بیمار تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، لیکن ابھی وہ ہیں. تو وجہ سے کہ بعد میں ان کے لیے کچھ کیا جائے، جب انسان زندہ ہے ان کو عزت دینی ہے اس وقت پہ، تو یہی سوچ کر کے ہم نے ان کے لیے گانا کیا. اور بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے خود 27 لینگویج میں گانا گایا جی، اور بلکہ وہ کوریا گئے تھے. مجھے بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ جب وہ کوریا گئے تھے تو کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک ہی اسٹیشن ہوتا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ جو وار وکٹمس تھے ان کے لیے گانا گایا تھا، تو انہی کی زبان میں گایا تھا کوریا میں. تو ان کو پھر پرائیویٹ پرفارمنس دیا تھا، اگلے ہی دن دے دیا گیا اور ان کو روکا گیا کہ ابھی واپس نہ جائیں کنٹینجنٹ جو گیا تھا وہاں پہ. تو اگر وہ پاکستان کا اتنا نام اس طرح سے روشن کر سکتے ہیں تو ہمارے بھی ایسا پاکستانی اتنی تو بنتی ہے کہ ہم. اور وہ پھر آپ نے ایک چائنیز سنگر کو ڈھونڈا اور چائنیز سنگر نے اپنی لینگویج میں اردو لینگویج میں گانا گایا، وہ کیا ایکسپیرینس تھا؟ وہ اچھا تھا، کیونکہ اگر جیسے میں نے بتایا امیر صاحب خود اتنی لینگویج میں گا چکے ہیں، تو اگر ان کو کوئی ٹریبیوٹ دے رہا ہے اور وہ اتنے سالوں بعد آ رہے ہیں واپس، تو ایسے دیا جائے کہ بیونڈ پاکستانی کو ان کی میوزک کو اکنالج کریں، ان کی کنٹریبیوشن کو، اور کسی ینگ
सिंगर ने उन्होंने किया, तो मैंने वीडियोस दिखाई तो कहते हैं राइट कि मुझे करना है इसका सॉन्ग। फिर उन्होंने कहते हैं यहाँ दोबारा से रिवाइव किया, आपने नहीं कैसे किया, और मेरे ख्याल में उनकी उसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उसको नया कर दिया, लेकिन उसकी जो रूह है सॉन्ग की वो वैसी रखी, और शायद इसीलिए वो कामयाब हुई। जबरदस्त। आपने ड्रामा में, आपका भाई भी प्रोडक्शन में है और काफ़ी देर से हैं और टोरंटो में हैं, और आप सब मेरा ख्याल है घराना बन चुका है, अगर हम ये कहें प्रोडक्शन के हवाले से, टीवी के हवाले से। मैंगोस ड्रामा, उसका क्या एक्सपीरियंस था? मैंगोस तो शुरू तो ऐसे ही खेल कूद में हुआ था, और जब हमने शुरू किया था तो वेब सीरीज के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उसको वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तकरीबन 11 साल पहले। और तो उसको हमने शुरू किया था, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आया, स्पेशली एक उस एज ग्रुप से जिनके लिए मोस्टली कोई कंटेंट होता ही नहीं है या होता नहीं था उस जमाने में, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर हमने उसकी एक और सीज़न बनाया, वो थोड़ा और एक्सेप्ट हुआ। फिर यहाँ पे रॉजर्स, जिसको जानते ही हैं, उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप मेन स्ट्रीम के लिए बनाएं, क्योंकि उसकी स्टोरी जो है वो एविडेंस के ऊपर है, और तो हमारे लिए मतलब एक अच्छी बात थी, क्योंकि हम अपनी स्टोरीज आपस में जानते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन बियॉन्ड उनको बताना कि अगर हम इस तरह सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और हम किस तरीके से इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको दिखाने की प्लेटफॉर्म था। अदील, आपने पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन को भी एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग कम लोगों को पता हो, और आपकी जो कम्युनिटी वॉलंटियर कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी सराहने के काबिल है। शुक्रिया, वो मेरा बचपना था। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन से, अक्सर ऐसे होता है नाज़रीन कि जब कोई एसोसिएशन में हो या किसी में हो, या अपनी प्रोडक्शन बना लेता है या फिर अपनी कोई एसोसिएशन बना लेता है, तो ये तो चलता रहता है। तो हमारे साथ हैं हिरा जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। और हिरा ने बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत तैयारी की हुई है, आज बड़े खूबसूरत झुमके पहने हुए हैं, और नाज़रीन आप ईद का पूरा एहतमाम है। तो हीरा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को कि आपने बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स भी आप जाती रहती हैं, और बहुत कम्युनिटी में आप ने वॉलंटियर वर्क भी किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कम्युनिटी के साथ, और आपका रमज़ान कैसे गुजरा और ईद कैसे मनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए, और दूसरा सबको ईद मुबारक। और रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। इट वाज बिजी विद वर्क एंड देन कम्युनिटी, इफ्तार, काफ़ी कुछ था। लोगों के साथ कुछ आप इफ्तार करते हैं, कुछ आपको बुलाते हैं, बड़ी अच्छी डिशेज आप खाते हैं। और सोशल मीडिया का ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से आप खाते हैं और हम ललचा रहे होते हैं कि इतनी अच्छी डिशेज जो हैं वो आप अकेले के लिए खा रही हैं, और नवीन आपकी तो पार्टीज को कितनी मजेदार होती है। माशाल्लाह वो तो होती है, लेकिन जो आपको देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर यही एक ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से इतनी दूर होते हैं, तो जितने पाकिस्तानी आपकी कम्युनिटी आपको मिलती है, यही हमारा एक घर बन जाता है यहाँ पर। तो वो दिल करता है कि अब 5 दिन गुजर गए हैं जॉब पे, अब आई थिंक जो 3 दिन है वो हम अपनी यहाँ की कम्युनिटी, अपनी फैमिली को दें, तो फिर उनके साथ ही जितना दिल करता है, वो इफ्तार है या पार्टीज हैं, फिर आपने उनको ही टाइम देना है। क्या बात है, जबरदस्त। थोड़ी सी बात मैं ऐड कर दूं कि आपने झुमकों की बात की। जी जी। तो पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने मैंगोस का सीजन 3 देखा है, लेकिन उसमें एक लाइन है, और स्पेशली मर्दों के लिए है, और मैं डिफरेंट तो नहीं करता, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग झुमकों की बात करते हैं, और हम कभी कभी जो झूलने वाले झुमके होते हैं, जो बड़े झुमके होते हैं, उनको औरतों की उस नज़ाकत को, उनकी कमजोरी समझ जाती है, तो इसके बारे में सोचिएगा। ये आपने बड़ी गहरी बात की है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत महफिल और बहुत ही खूबसूरत ईद का प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और इसमें हमारे साथ अब जुड़ गए हैं दक्ष कुबा, जो कि
जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान भी हैं और बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, और आज हम इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। इनका तारुफ कुछ यूं है कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में इन्होंने पाकिस्तान के सिंगर्स को बहुत हाईलाइट किया है, और पाकिस्तान का जब आप जनून का नाम लेते हैं, वाइटल साइंस का नाम लेते हैं, उस एरा से लेकर आज के सिंगर्स को भी ये बहुत ही खूबी से गाते हैं, और आज ये हमारे साथ है, और आज हमें ये वो ट्यून्स भी सुनाएंगे, पंजाबी ट्यून्स भी सुनाएंगे, और जो आपको महसूस करेंगे। तो जैस्मीन बराड़ भी साथ शामिल हैं। इन्होंने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं हमारे साथ, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, और आज हम इनसे भी थोड़ी सी ट्यून सुनेंगे और देखेंगे कि ये आपको कैसे महसूस करती हैं इस ईद के खुशी के मौके पे। तो जैस्मीन एंड दक्ष, बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से सलाम, और हम चाहेंगे कि आपसे मुख्तलिफ ट्यून सुनी जाएं और आज का ये प्रोग्राम आपके नाम कर दिया जाए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं नाजरीन, ये हमारे कुछ पाकिस्तानी जो लड़के थे उनके साथ मिलके एक उन्होंने ग्रुप भी शुरू किया था एक दफ़ा, उसका नाम नक्श था। अभी भी है जी जी बिल्कुल। सो well, first of all I wanted to welcome everyone to this humble temple of mine. I think जो रीज़न हमने शुरू किया था वो यही था क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और वो पाकिस्तान से थे, और मेरा बचपन से ये goal रहा है कि music is something that can bring India and Pakistan together, and that is why I wanted to offer my place as a space for everyone to just come and talk about Eid and talk about this upcoming great event that we have. So thank you all for coming. But yeah, so हमारी एक एल्बम भी है अभी नक्श की ऑलरेडी स्पॉटिफाई और आईट्यून्स वगैरह पे, और एक एक्चुअली वो गाना है, उस गाने का नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि एक इट्स अ हम्बल मैसेज फॉर पीपल टू अमन के राह को चूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ द ऑपोजिट. सो that's our goal, to bring India and Pakistan together through music, and that is why I'm so very much involved, not just in the Indian music but also in the Pakistani music, because that's really close to my heart. That actually Pakistani music के वजह से मैंने गिटार पकड़ा था, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा एक दोस्त था तैमूर सलाउद्दीन, now he's known as Muru, his artist name, and he introduced me to the guitar for the first time, so that kind of helped me be where I am. So yeah, it's very close to me for sure. Now I have a beautiful young soul with us, Aliyah Kazmi, and she has, she's not even a star, she's a superstar, and she's not only volunteering, she's been doing a lot of things all around the community. And Aliyah, we have seen you on the stage, we have seen you on many fronts, on a religious front. How's your Eid? And you're looking beautiful. Thank you very much. I think all of us are looking so great. Yeah, and these are my favorite colors, both right? of them. That's pretty They're good. great. Yeah. First of all, Assalamu alaikum to you and everybody at home, and Eid Mubarak to everybody. It's just so exciting. Eid is it marks really the end of Ramadan, and it's such a magical and great time because you start off going to the mosque, praying salah, and really what it teaches us is that we start off such a great time submitting to Allah subhanahu wa ta'ala. I think that's the most beautiful and spiritual thing. It's been absolutely wonderful. Eid is just magical, really.
ان کا نام بشرا احسان, اور یہ جو ہیں ویسے تو کمیونٹی میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے ایونٹس میں وہ آگے آ رہی ہیں, پاکستان فیسٹیول کرتی ہیں, پاکستان فیسٹیول کے حوالے سے بھی آپ ان کو جانتے ہیں, اور یہ ایک وومنز ایسوسیشن جو ہے ہمارے یہاں پہ, اس کی بھی ایک بہت ہی اچھی ڈائریکٹر ہے اور بہت اچھے والنٹیئر کام بھی کر رہی ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے اور آپ کا رمضان کیسے گزرا اور کیا تیاریاں ہیں. جی بشرا. السلام عید مبارک. عید رمضان اچھا گزرا, مشکل تھا لیکن اچھا گزرا الحمدللہ. اور عید کی بس جو تیاریاں ہوتی ہیں بچوں کی اراؤنڈ ہوتی ہیں, کڈز وانا بی ریلی انوالوڈ ان دس, ہے ان کی شاپنگ اور خاص طور پہ لڑکیوں کی, تو وہ ہم نے ساری کر لی. اور اس کے علاوہ جس کام بھی ساتھ ساتھ ہے, ہم پاکستان فیسٹیول کی تیاری اب فل زور شور پہ ہے. اور I'm also doing my studies, so everything was going on at the same time, but it just went perfectly well. پتہ بھی نہیں چلا and ختم ہو گیا. تو بشرا, آپ کے متعلق مجھے پتا چلا کہ آپ ایک بزنس وومن بھی ہیں. جی میں نے بتایا. آپ نے بتایا؟ اچھا اچھا اچھا, تو پھر آپ سے پتا چلا. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اتنا محنت کرتی ہیں, آپ ایک بزنس بھی رن کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمیونٹی کو یہ کیسے ہینڈل کر لیتی ہیں؟ Business, of course, this is how I pay my bills. So my husband and I started together. We have a company, a courier and freight company. So وہ ہم نے چھوٹی سی شروع کی تھی آج سے 11 years ago, and it really took off, and now we're doing great. So ہو جاتا ہے handle. Now it's kind of on a autopilot. اس کے سب سسٹم سمجھ آ گیا کیا کیا کرنا ہے. So we take it easy in Ramzan. For business, and we have good employees in place, so everything is great. Alhamdulillah. So I love doing my work. It's one of my passions, and I take a lot of pride in it too, because it's kind of like a baby that grew up in front of me and started with almost nothing. So it's MashaAllah, MashaAllah. تو ایسے ہی ہم آپ کو Yes, power to women. Absolutely, she is. آپ کے سامنے ایک اور مہمان سے تعارف کروانے جا رہے ہیں. ان کا نام ہے شازیہ کاظمی. شازیہ کاظمی ایک کمیونٹی میں بہت والنٹیئر کام بھی کرتی ہیں اور ان کو ہم نے بہت سارے ایونٹس میں بھی دیکھا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے چاہیں گے تھوڑی سی بات کریں. شازیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار آسکنگ. السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ عید مبارک سب کو جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اور جو گھر میں بھی سن رہے ہیں. عید جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے بہت خوشیوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اس دفعہ رمضان میں ہمیشہ ہمیں ہوتا تھا کہ زور زیادہ افطاریوں پہ ہوتا تھا. اس دفعہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم افطاریوں پہ زور نہیں دیں گے, ہم عبادات پہ زور دیں گے. جو رمضان کی ریئل روح ہے ہم اس پہ فوکس کریں گے. سو الحمدللہ ہم نے اس پہ فوکس کیا اور اس کا بہت خوبصورت ہمیں نتیجہ اس رمضان میں
ये मिला के दुआ जो है शी माशाल्लाह won the Quran competition sport में yesterday और या बहुत खूबसूरत वो हमारे लिए एक न्यूज़ थी और ये कि उसने हमारी खुशियों को दोबारा कर दिया है और रोज सुबह की तैयारियां शीर खुरमा बनाना और तैयार होना वो सब चीज़ें ईद की नमाज वो एक्साइटमेंट वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें हम लोगों ने एंजॉय की हैं अभी तक. जबरदस्त जबरदस्त. नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं. आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेहमान हैं और लेडीज हैं और ये ईद की तैयारियों में इनका नंबर 1 है ये. और हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी अगली मेहमान महनाज, जो कि कम्युनिटी वर्क भी बहुत करती हैं, घर का काम भी बहुत करती हैं और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पालती हैं. महनाज, कैसी ईद गुजरी? बहुत अच्छी है. पहले तो रमजान बहुत अच्छा गुजरा और आप सबको ईद मुबारक. रमजान मुझे अच्छा लगता है कि उसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठती है. यहाँ पे बहुत कम होता है कि एक साथ मिलके खाना पीना सब हो, तो मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है. ये आपकी फैमिली का टाइम होता है और मतलब रूहानी भी और हर तरफ से माशाल्लाह एक अच्छा फील होता है हर किस्म का. बच्चे भी खुश होते हैं. मेरे तो सारे बच्चे माशाल्लाह रोजे रख रहे हैं हमारे घर पे अच्छा चल रहा है. मुझे बस यही खुशी होती है कि वो अपनी मतलब कंट्री के साथ भी अटैच रहे, अपने रिलीजन के साथ भी अटैच रहे. तो इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है. जबरदस्त. और कैसा चल रहा है कम्युनिटी का काम? वो थोड़ा सा ब्रेक अभी लेके आएंगे ना, ऑन रैकेट सब कुछ करवा लेते हैं. अब अभी सब सो रहे हैं, मेरे ख्याल में सबको ब्रेक चाहिए, तो अभी इंशाल्लाह वापस आएंगे. माशाल्लाह इंशाल्लाह. एक और दूंगा संभल जा जरा मोहब्बत करने चला है तू, यहीं रुक जा जरा दिल मोहब्बत करने चला किसी को है बनाया, हर किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता. सब क्या है कहना, तुमको है कहना, जीने की मरना इसी के लिए. आजकल प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है सबको खबर हो गई. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो. और नाज़रीन, हमारे साथ एक और हमारी मेहमान, और ये अब इनका तारुफ ऐसे है कि ये एक हमारी वुमेन एसोसिएशन, जो हमारी एसोसिएशन है उसकी वुमेन विंग को भी लीड करती रही हैं, सईदा इमराना.
वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपने इनको बहुत सारे दूसरे टीवी शोज में भी देखा है। आज वो हमारे साथ हैं। तो आपकी इमराना कैसी ईद गुजर रही है, क्या फन हुआ, रमजान कैसा गुजरा था और क्या तैयारी है? पहले तो सबको ईद मुबारक। और ईद तो अच्छी गुजर रही है और रमजान भी अच्छा गुजर गया। बारिशें और धूप मिला जुला था लेकिन अच्छा गुजर गया और अच्छा है। रमजान का महीना तो वैसे बड़ा मुबारक होता है, बहुत आपको टाइम मिलता है इबादत के लिए, थोड़ा सा फैमिली के लिए, जैसे मैं नाज़ ने भी कहा। तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। और क्या करना चाहिए, क्या कुछ डिशेस वगैरह कौन सी आप समझती हैं कि ईद में इस तरह की डिश हो और इस तरह की दावत हो तो वहां पे मैं जाऊंगी? ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने किसी को नाराज नहीं करना। अच्छा, ये नहीं बताएंगी कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, कौन सी डिश आपको पसंद है, क्या बनाने जा रही हैं आप? मुझे तो आसान डिश पसंद होती है जो मैं जल्दी बना लूँ। तो बेसिकली मैं चिकन बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो अभी हमारा प्लान है ईद पे कुछ फ्रेंड्स को उनके साथ ब्रंच करने का, तो उस पे देखेंगे कि जो भी कुछ जल्दी जल्दी बन जाए। जबरदस्त, माशाल्लाह। स्पाइसी होना चाहिए। हाँ, मुझे तो स्पाइसी तो बनना है। वो हमारे लिए मुझसे पूछ ले। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और हमारी गेस्ट जो गेस्ट थोड़ी हैं, वो हमारी प्रोग्रामों की होस्ट भी रह चुकी हैं और बहुत सारे और कम्युनिटी के प्रोग्रामों की होस्ट भी रह चुकी हैं और वो एक कामयाब बिजनेस वूमेन हैं और इसके साथ साथ वो कम्युनिटी के कामों में भी एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और एक फेस्टिवल जो पाकिस्तान फेस्टिवल के नाम से एक पॉपुलर फेस्टिवल है, उसका भी एक बहुत ही अहम रुकन है। तो हम उनके साथ आपकी मुलाकात करते हैं। नाना अदर देन साइमा नाज, अस्सलाम वालेकुम। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी ईद मुबारक आपको और सब देखने वालों और सुनने वालों को। माशाल्लाह। क्या तैयारियां हैं ईद के क्या कुछ चल रहा है ईद क्या? ईद का बस फैमिली टाइम होता है। यूजुअली इट्स मेहंदी, चूड़ियाँ, अच्छा खाना, ईदी and essentially just spending time with the people that you love the most. So बस यही है कि अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, ये प्लानिंग है। और आपका अगर ये मैं कहूँ कि आप ना सिर्फ ईद को एंजॉय करती है बल्कि बाहर भी आउटिंग भी बहुत सारा करती हैं और आपने बहुत सारा हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे कैनेडा के दूसरे नाज़रीन भी देख रहे हैं, टोरंटो में खसूसी तौर पे ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और दुनिया पूरी भी ये प्रोग्राम देखती है, तो बहुत सारी जगहों पे आपको आपने बीसी में एक्सप्लोर किया है। तो कौन सी इंटरेस्टिंग जगह आप समझती हैं कि वहाँ पे अगर ईद गुजारी जाए तो वो एक मजा उसका दोबारा हो जाएगा? कौन सी जगह बीसी में आप समझते हैं? क्योंकि ईद आजकल इट्स इन अ वार्म सीजन, तो मुझे लगता है कि हमें बाहर बारबेक्यू पिकनिक्स पे जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। आई मीन सैली पार्क तो हम रेगुलरली जाते हैं, लेकिन there's lots of different lakes जहाँ पर हम जा सकते हैं, छोटी सी हाइक्स कर सकते हैं, you know, so there's so much to do। जैसे आपको पता है कि बीसी में नेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास फॉरेस्ट हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। और वैसे भी जब हम थोड़ी सी हाइक कर लेते हैं तो खाने का मजा ज़्यादा आता है। I think so। और फिर पता गिल्टी भी नहीं फील करता, क्योंकि एक्सरसाइज भी साथ में हो गई है पहले। Yeah.
जान मेहरबानिया ना दुखा नाल तोल दे ना जिंद साडी रोल दे कदी ते हस बोल दे ना जिंद साडी रोल दे अनिया तो की पाइया चांचरा रोग मारे शिकारी अनिया तो की पाइया चांचरा रोग मारे शिकारी कंगना तेरा नी सानू करे शाय कंगना तेरा नी सानू करे शाय अनिया तो की पाइया चांचरा रोग मारे शिकारी अनिया तो की पाइया चांचरा कंगना तेरा नी सानू करे शाय कंगना तेरा नी सानू करे शाय मैं जब तेरे कपड़ी रात में आ तुरे आकड़ा में तो जावे पड़या जिवे दे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मेरा तेरे नाल नवा मुंह जुड़या लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके पूछ ले गवाने तारे अड़िए जे कर जे मजा तू ना हंस लड़ दे जे ताने कस दे ना कस लड़ दे मैं देखा तेरी फोटो साथ सवारी कुड़े मैं देखा तेरी फोटो साथ सवारी कुड़े सुपने चुराही जानी है नींद उड़ाही जानी है सुपने चुराही जानी है नींद उड़ाही जानी है मेरा एक बार कुड़े मैं देखा तेरी फोटो साथ सवार कुड़े मैं देखा तेरी फोटो साथ सवार कुड़े अब हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ जा रहे हैं। ईद की खुशियां भी हैं और ईद में सबसे ज्यादा लेडीज जो जिनको पसंद होती है वो होती है मेहंदी। और यहाँ हमारे वैंकूवर में अलमास जो हैं उनकी अगर आप ये कहें कि एक ब्रांड बन चुका है और वो हमारे पास मौजूद है और आज ये अपना छोटा सा फन और हुनर दिखाएंगी हमारी लेडीज जो भी अपना मेहंदी लगवाना चाहें तो हमें बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम दिखाएंगे कि इन्होंने कितनी खूबसूरत मेहंदी लेडीज ने लगवाई है और उसको हम आपके सामने डिस्प्ले भी करेंगे। तो अलमास कैसी जा रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये रमजान और ईद भी अच्छा जा रहा है। ये महीना तो रिवॉर्ड्स हासिल करने का है यार, स्पिरिचुअल लेवल। So I've just been working on that with my family, and I also want to get all the ladies involved in getting that reward as well. So माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। खाना क्या बनाने जा रही हैं? मुझे तो खाने की बात बताएं। हम तो चपली कबाब बनाते हैं। जबरदस्त चपली कबाब तो बहुत मशहूर है और पेशावर के चपली कबाब तो कमाल है। चपले भी मशहूर है। चपले भी और वो जबरदस्त चीज ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है आलम ये कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई ऐसी है ये रुसवाई गुम हो गए क्यों
तो नाज़रीन, अब हम आपको हमारी अगली मेहमान के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो जिनका वॉलंटियर वर्क इस हवाले से भी देखने के उन्होंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है, और मैं इनकी इस तरह से भी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ कि हमारे जो कम्युनिटी के प्रोग्राम हुआ करते थे उनको पहले जिन्होंने बच्चों को ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही खूबसूरत टैबलो शोज और ये सारे ऑर्गेनाइज किए, और मुझे लगता है बच्चे इनकी सुनते नहीं हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करना इट्स अ वेरी टफ जॉब, और ये हमारे लिए बहुत सारे शो तैयार करती रही हैं और कम्युनिटी में बहुत सारा काम करती रही हैं, और फिर थोड़ा अर्सा ये पिक्चर से गायब भी नहीं, शायद पाकिस्तान चली गई थी, अभी हम उनसे बात करेंगे, और आज ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई है। राबिया इमरान शेख कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है सबको बड़ी देर के बाद देख के, सारे ओल्ड फेसेस सारे सामने, तो बस ठीक है। पाकिस्तान गए हुए थे लेकिन ये कि अभी हम इधर ही हैं और चढ़ के ईद की तैयारियां हो रही हैं बच्चों के साथ स्पेशली, और बच्चों की होती है ईद, हमने तो सबसे आगे बच्चों को रखा, बच्चों के कपड़े बच्चों को, और जो कुछ हम करते हैं ईद या रमजान के हवाले से वो हम अपनी अगली जनरेशन को दिखाने के लिए करते हैं ताकि वो हमसे सीखे। अगर हम लेड बैक हमारा एटीट्यूड होगा तो मजीद वो लेड बैक हो जाएंगे, तो ये अफ्तारी सहरी ये सारे एहतमाम करना आई थिंक ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आगे इसको लेके चलेंगे। जबरदस्त। क्या पुकारी है? मैं तो बहुत चोरू पुकारने बहुत चोरू, लेकिन इजी खाने जो होते हैं ना, बिकॉज मैं काम भी कर रही हूँ, तो जो क्विक से खाते हैं बिरयानी और मसाले बहुत ज्यादा यूज करके जो। अच्छा, अभी तक किसी ने मीठा नहीं बताया, कोई खीर कोई इस तरह की चीज? सेवियां तो हमारे घर में बड़ी रूटीन में पकती है, जबरदस्त। बच्चे भी बड़े शौक से, और सारा ईद पे अच्छा लगा। ठीक है जी, अब हम अदील के पास जाते हैं। अदील, कैसा लगा एक कम्युनिटी की जो हमारी लेडीज हैं, जो बिजनेस वुमेन भी हैं, जो काम भी कर रही हैं और साथ साथ वो बच्चों को भी पाल रही हैं, यही तो हमारी कम्युनिटी का जो है ना वो उसको आप कहते हैं कि पिलर्स हैं, कैसा लगा आपको? मुझे तो लग रहा है कि हम मर्द की तरह कमी कर देते हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे वो करने में हो, और आज भी ऐसी लग रहा है कि ईद यहाँ देखे लग रही है, इधर देख कर तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, और रिस्पेक्ट तो हमेशा औरतों की हमेशा होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि न सिर्फ पिलर होती हैं बल्कि फाउंडेशन होती है, और हमें शायद मुझसे मर्द ऐसे नाराज हो जाएंगे बहुत सारे, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन इनकी वैल्यू करना चाह रहा है, क्योंकि सिर्फ वो ना सिर्फ फाउंडेशन लेके चलते हैं, आप लोग बच्चों के लिए संभालते हैं, घर को संभालते हैं, और मर्द से बाहर जाता है, तो उस हिसाब से आपकी नजरें इधर उधर जा रही है सोचने के लिए सारे मर्द ऐसे होते
कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वाला वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वाला एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। सो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत मेहंदी भी लगवाई हैं और उसके साथ आपने बहुत ही खूबसूरत नगमे भी सुने हैं। इसी के साथ हम आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा और हम आपके सामने नए से नए और अच्छे से अच्छे एपिसोड बनाते चले जाएंगे और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम। नचर तेनू दिल च लुका के रखिया ते वख ना हो जानी मैं तो तू तेनू साहा दी लड़ी च मैं पिरो के हट गया किते साहा तो ना हो जानी तू मैं संगदा तू भी संग दी मैं भुला तो कहां चुन जावा तू भी मांगे जिंदना तेरा संग वाली सारी मैं मुकरा देनिया फोटो दिल दे कोने च लुका के सीना रखी अज अखा दे सामने करा देनिया कदा ही जावा मैं तेनू चावा सिरा तेरे तो ना तेरा शर्माना अखा नु छुपाना एक दे ही खा मर जावा मैं इन्ना चिर तेनू दिल च लुका के रखिया ते अख ना हो जावी मैं तो तू तेनू साहा दी लड़ी च मैं पिरो के रख गया साहा तो ना हो जावी तू सूरज हुआ मत्थम चांद जलने लगा आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मत्थम चांद जलने लगा आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़काए सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना हाँ ये मेरा पहला प्यार है हाँ ये मेरा पहला प्यार है हाँ ये मेरा पहला This guy says he's for the little guy,
But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy, please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. सेहतमंद दांत तंदुरुस्ती की अलामत एफ्लक्स डेंटिस्ट्री पर डॉक्टर यास्मीन उमर और उनकी टीम आपके दांतों की हर तरह की बीमारी का इलाज करती हैं। 1055 कैनेडियन प्लेस, यूनिट 103, मिसिसागा, एग्लिंटन और टॉम्पकन का इंटरसेक्शन। टीथ व्हाइटनिंग, इमरजेंसी डेंटिस्ट्री, रूट कैनाल, मेटल फी क्राउन्स, डेंटल एक्सट्रैक्शंस, डिजिटल एक्सरे, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा इनविजिलाइन क्लियर ब्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाइए एफ्लक्स डेंटिस्ट्री। सीनियर्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 10% स्पेशल discount, free Invisalign consultation and $1,000 off on Invisalign। तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉल कीजिए 905-232-3133। It's 905-232-3133। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com।
She knows who she is. She knows who we are, how tough this pandemic has been, and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP. रियल स्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। बल्ले बल्ले खुशियां बांटते, आजो आजो बुकिंग करा लो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن।